हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एडवांस पेपर 2 डिस्कस करेंगे एएफएस का, जो 4 अक्टूबर को हुआ है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फिजिक्स पेपर 2, क्वेश्चन नंबर 19. Question number 19. 3 blocks are placed in contact on a smooth surface. Surface is smooth as shown in the figure and are pushed with an external force of 48 Newton. So let's draw this figure. 1 kg first block, 2 kg, then 3 kg. Force is equal to 48 Newton. Okay. Then we have to find out the normal contact force between the block of mass 2 kg and 3 kg. So we have to find here the normal contact force between block of mass 2 kg and 3 kg. So first calculate the acceleration of the system. So acceleration, we know that it is net force upon total mass. So net force is 48 upon total mass is 3 plus 2, 5 plus 6. So it is 8 meter per second square. Okay. So now we have to calculate the normal between 2 kg and 3 kg. So you can make the FBD of 3 kg block. So the 3 kg block FBD will be, this is the 3 kg block. This is moving with acceleration 8 meter per second square because of the force exerted by 2 kg block, and the force is normal. This normal, due to this normal force, this block is moving with acceleration 8 meter per second square. So apply Newton second law here. So N is equal to mass is 3 into acceleration is 8. So it is 24 Newton. This is our answer. Okay. So remove this. Then question number 20. Question number 20 is two particles A and B are thrown from same point. There are two particles which are thrown from same point. One is, suppose this is A at angle 30 degree, and this is B at angle 60 degree. Okay, from same point and in same vertical plane as shown in the figure with speed 30 meter per second. The speed of this block is 30 meter per second and speed of this particle is 40 meter per second. Find the separation between them after 2 seconds. We have to calculate the separation between them after 2 seconds. So we know that with respect to one projectile, path of other projectile is straight line. Okay, so let's suppose this is we have to calculate the separation between them. So with respect to A, B is moving like this. VBA is equal to VB minus VA. Okay, so if अगर हम A के रिस्पेक्ट में B को देखेंगे तो A तो रेस्ट पर आ जाएगा. This is in with respect to A. हमें सेपरेशन बताना है, तो किसी भी एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में दूसरे पार्टिकल का पाथ पता कर लो. ठीक है, सो इट विल बी स्ट्रेट लाइन. सो A को तो हम रेस्ट पर कर देते हैं, ये A, और A के रिस्पेक्ट में B जा रहा है VB माइनस VA से. सो VB तो दिस साइड है, VB दिस साइड है, VA इस साइड है, तो माइनस VA होगा इस साइड. दिस इज माइनस VA. सो A के रिस्पेक्ट में ये जो पार्टिकल है ये इस तरफ जा रहा है विद स्पीड VBA. सो VBA का अंडर रूट, VBA का मैग्नीट्यूड आएगा A के रिस्पेक्ट में अंडर रूट ऑफ VB स्क्वायर प्लस VA स्क्वायर. ओके, सो इट विल बी अंडर रूट ऑफ 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर. So it will be under root of 50. So 2500, 1600 plus 900, 2000. So it is equal to 50 meter per second. So अगर A के रिस्पेक्ट में देखें हम तो B वाला पार्टिकल 50 मीटर पर सेकंड से जा रहा है. ये A के रिस्पेक्ट में मैंने बनाया. B वाला पार्टिकल A को रेस्ट पर कर लिया तो A की वेलोसिटी B के साथ एडजस्ट हो गई.
सो ये 50 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो हमें सेपरेशन बताना है 2 सेकंड में, तो 2 सेकंड में कितना चला जाएगा। सो टी हमें सेपरेशन बताना है, सो एस इज इक्वल टू वी बी ए मैग्नीट्यूड इनटू टाइम। सो ये 50 से जा रहा है इनटू 2, सो 100 मीटर दूर चला जाएगा। ओके, सो द सेपरेशन बिटवीन बी एंड ए आफ्टर 2 सेकंड इज 100 मीटर। Okay, so let's move to the next question. Question number 21. If tension in string A and B are TA and TB, एक फिगर गिवन है, ये स्ट्रिंग B है, ये स्ट्रिंग A है, ये मास है 100 kg, ये स्ट्रिंग C है, ये एंगल गिवन है 45 डिग्री। ओके, so we have to find out TA by TB. TA by TB we have to find out. TA by TB. So एक एक करके एफबीडी बनाते हैं। जैसे यहाँ पर नीचे 1000 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो ऊपर टेंशन होगी TA, तो TA इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 न्यूटन, क्योंकि रेस्ट पर इक्विलिब्रियम में। सो ये टेंशन यहाँ पर भी लग रही होगी TA, यहाँ पर TB लग रही है और यहाँ पर TC लग रही है। TC जो है वो एट एंगल 45 डिग्री। सो अगर मैं इस पॉइंट की एफबीडी बनाऊं, इस पॉइंट की, तो यहाँ पर TA विच मीन्स 1000 न्यूटन नीचे फोर्स लग रहा है, इधर TB लग रहा है। TC के अगर मैं कंपोनेंट लूं तो TC cos 45 मतलब TC बाई रूट 2 ऐसे लग रहा है, और TC बाई रूट 2 अपवर्ड लग रहा है। सो यहाँ से TC बाई रूट 2 इज इक्वल टू 1000 न्यूटन होगा, क्योंकि टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, तो TC इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 रूट 2 न्यूटन। ओके, 1000 रूट 2 न्यूटन हो जाएगा। देन यहां से TC की वैल्यू आई तो TB भी निकल जाएगा। सो TB इज इक्वल टू होगा TC बाई रूट 2, तो ये आ जाएगा 1000 न्यूटन। सो TA भी 1000 न्यूटन और TB भी 1000 न्यूटन, सो आंसर आएगा 1000 बाई 1000 1। नोट कर लो। Then question number 22. Two blocks are connected by string. One block of mass 2 kg, other block of mass 4 kg, as shown in the diagram. The upper block is hung by another string. इसको एक और स्ट्रिंग से हम फोर्स लगाकर इसको ऊपर ले जा रहे हैं। A force F is applied on the upper string produces an acceleration of 2 meter per second square. इस फोर्स की वजह से पूरा सिस्टम 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है। ओके, in the upward direction in both the blocks. If T and T dash be the tension in the two parts of the string. यहाँ पर टेंशन है T और यहाँ पर है T dash, तो हमें T और T dash निकालना है। We have to calculate T and T dash. तो पूरा सिस्टम हमारे पास है। सो अब एक काम करते हैं, एक एक करके यहाँ पे सारे फोर्स की वैल्यू पुट करते हैं। सो फिर एक एक करके एफबीडी बना देंगे। जैसे इस पर नीचे फोर्स लग रहा होगा, इस पर नीचे फोर्स लग रहा होगा 14 न्यूटन, यहाँ पर टेंशन लग रही होगी T डैश, यहाँ पर भी यही टेंशन T डैश, प्लस इसका वेट 20 न्यूटन नीचे और ऊपर ये टेंशन T। सो नीचे से एफबीडी बनाते हुए चलते हैं, T डैश निकालेंगे, ये भी 2 से जा रहा है, ये भी 2 से जा रहा है। सो अगर मैं 4 kg की एफबीडी बनाऊं तो T डैश
minus 40 is equal to mass 4 into a 2, acceleration is 2, so t dash is equal to 48 न्यूटन। देन अब मैं 2 kg की एफवीटी अगर बनाऊं तो 2 kg पर ऊपर फोर्स लग रहा है t, नीचे लग रहा है t डैश, एक और 20 लग रहा है नेट फोर्स, नीचे वाले माइनस, मास कितना है 2 इंटू एक्सेलरेशन है 2, सो वैल्यू पुट कर दीजिए। सो t इज इक्वल टू हो जाएगा t डैश इज 48 प्लस 20 प्लस 4, सो 48 प्लस 20 68 प्लस 4 72 न्यूटन। सो t डैश भी निकल गया और t भी निकल गया, लिख लीजिए, लिख लीजिए। Then question number 23. Question number 23. A block of mass m1 equal to 3 kg and okay, पूरा सिस्टम गिवन है पुली ब्लॉक का। ये 2 kg है एंड ये 3 kg। इंक्लिनेशन एंगल है 30 डिग्री, is connected by a cord over a small frictionless pulley to a second block of mass 2 kg hanging vertically. The tension in the cord. So मैं इस कोड में टेंशन निकालना है। So टेंशन निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं। So नेट फोर्स सिस्टम पर एक तो ये लग रहा है 20 न्यूटन, T ये इंटरनल टेंशन है, यहाँ पर भी टेंशन लग रही है, ये इस तरह से टेंशन लग रही है। एक फोर्स mg का ये कंपोनेंट होता है mg cos थीटा, ये कंपोनेंट होता है mg sin थीटा। Okay, so mg is 30 sin 30, 30 sin 30 is 1 by 2, so 30 into 1 by 2 मतलब 15 न्यूटन इसका कंपोनेंट नीचे आ रहा है। सो टेंशन तो सब इंटरनल फोर्स है, नेट फोर्स इस पे लग रहा है 20 माइनस 15, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा नेट फोर्स कितना है 20 माइनस 15 अपॉन 3 प्लस 2 5, सो 5 by 5 मतलब a इज इक्वल टू आया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। अब 2 kg की अगर मैं एफवीडी बनाऊं तो 2 kg पर 20 नीचे लग रहा है, t ऊपर लग रहा है, ये नीचे जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इधर 20 बड़ा फोर्स है 15 छोटा फोर्स है, तो पूरा सिस्टम ये ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा। सो कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। इसका मास है 2 kg, तो क्या लिखूंगा मैं 20 बड़ा फोर्स है 20 माइनस t इज इक्वल टू मास 2 इंटू एक्सेलरेशन 1, तो t आएगा 20 माइनस 2 18 न्यूटन। दिस इज अवर आंसर, नोट कीजिए। Then question number 24. Velocity of river is 5 km per hour and its width is 4 km. इसकी width 4 किलोमीटर है रिवर की, इसको हम टॉप से देख रहे हैं, एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर है VR 5 km per hour. A boat starts from point A. This is the point A. This is point B. With respect to river, so velocity of boat with respect to river is given VBR is equal to 5 km per hour, and it is in the direction, this direction, 5 km per hour. Angle is 37 degree. Then the distance of point B where boat will reach other side of the river. तो हमें ये बताना है कि बोट रिवर के रिस्पेक्ट में इधर जा रही है, बट रिवर की फ्लो वेलोसिटी इधर है, तो बोट कहीं ना कहीं इधर जाएगी, तो हमें ये डिस्टेंस बताना है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे,
हमें पता है कि रिवर तो 5 किलोमीटर पर आवर से इधर जा रही है। अब इसके परपेंडिकुलर टू रिवर एंड अलोंग द रिवर कंपोनेंट ले लेते हैं। तो ये वाला कंपोनेंट आएगा इसका 5 cos 37, cos 37 इज 4/5, सो ये वाला कंपोनेंट आएगा 4 किलोमीटर पर आवर। एंड ये वाला इस साइड इसका कंपोनेंट आएगा 5 sin 37, so sin 37 is 3/5, so 3 किलोमीटर पर आवर। सो बोट रिवर के अपोजिट में 3 से जा रही है, मतलब नेट बोट इधर ही जा रही होगी रिवर के फ्लो में। सो अगर मैं इस ए पॉइंट पर और ये बी पॉइंट है, अगर मैं नेट कंपोनेंट निकालूं बोट की वेलोसिटी के, सो 4 किलोमीटर पर आवर से तो इधर जा रही है, एंड वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा 5 माइनस 3, 2 किलोमीटर पर आवर से बोट इधर जा रही है। इसका मतलब है कि बोट इधर कहीं जा रही होगी, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा ये है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो हमें ये डिस्टेंस गिवन है 4 किलोमीटर। सो सबसे पहले हम टाइम निकालेंगे, कितने टाइम में ये ए से बी पहुंचेगा। सो टाइम टू क्रॉस रिवर, टाइम टू क्रॉस रिवर is t is equal to distance is 4 kilometer upon speed is also 4 kilometer per hour, so 1 hour। now 1 hour में ये वाला कंपोनेंट इसको इस डायरेक्शन में आगे लेके जाएगा। सो कितना आगे लेके जाएगा, लेट से ये डिस्टेंस है x, सो x इज इक्वल टू ये कंपोनेंट इसको 1 आवर में 2 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है इनटू 1 आवर, स्पीड इनटू टाइम करेंगे तो 2 किलोमीटर आगे ले जाएगा। सो ये बोट यहां से 2 किलोमीटर आगे जाएगी, जाके रुकेगी। So this is our answer. Okay, इंक लेता हूं मैं इसमें। Sorry. Next question is 25. Question number 25. A train is moving in the north at a speed 10 meter per second. Length is 150 meter. अब मान लेते हैं कि नॉर्थ इधर है तो साउथ इधर हो, तो ट्रेन एक ट्रेन है नॉर्थ की तरफ जा रही है इधर 150 मीटर पर सेकंड से। इसकी लेंथ भी गिवन है 150 मीटर। ओके, सो the parrot is flying parallel to the train in the south with a speed of 5 meter per second। साउथ की तरफ एक पैरट चल रहा है, ये मान लो पैरट है, इसकी स्पीड है, सॉरी ट्रेन की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड और पैरट की स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स साउथ। द टाइम टेकन बाय द पैरट टू क्रॉस द ट्रेन विल बी। अब देखो जब आमने सामने से दो पार्टिकल चलते हैं तो दोनों की वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऐड हो जाती है। सो पैरट ट्रेन के रिस्पेक्ट में कितना चल रहा है, वेलोसिटी ऑफ पैरट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ये हो जाएगा 10 + 5 15 मीटर पर सेकंड। तो इसको टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज 150, स्पीड इज 15, सो टाइम लगेगा 10 सेकंड इसको क्रॉस कर। ओके, next question, question number 26. A toy train consists of 3 identical compartments A, B and C. It is being pulled by a constant force F. आइडेंटिकल कंपार्टमेंट है मतलब मास सेम है सबके। फोर्स लग रहा है F। The ratio of tension in the string connecting BC and AB.
सो A B C, ओके। सो ये T2 है, ये T1 है। सो हमसे T2/T1 पूछा है, BC एंड AB की टेंशन का रेशियो पूछा है, ओके। तो सबसे पहले तो एक्सेलेरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलेरेशन होता है फोर्स अपॉन नेट मास। सो टोटल मास है 3m। सो ये एक्सेलेरेशन आ गया इसका। इतने एक्सेलेरेशन से तीनों कंपार्टमेंट आगे जा रहे हैं। अब एक एक करके टेंशन निकाल लेते हैं। तो T2 निकालने के लिए मैं C ब्लॉक की एफबीडी बनाऊंगा। तो C ब्लॉक की अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो इस पर F फोर्स आगे लग रहा है और T2 पीछे लग रहा है। मास है m, तो क्या लिखूंगा, F माइनस T2 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन है F/3m, m से m कैंसिल, तो T2 इज इक्वल टू आ जाएगा F माइनस F/3, मतलब 3F माइनस F/3 मतलब 2F/3। ये T2 आ गया। अब T1 निकालना है तो A ब्लॉक की एफबीडी बना दो। A ब्लॉक की अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो इस पर एक ही फोर्स लग रहा है आगे, टेंशन इन द स्ट्रिंग, वो T1 है। इसका एक्सेलेरेशन भी इधर है A, तो T1 इज इक्वल टू में मास इनटू एक्सेलेरेशन। A इक्वल टू है F/3m। सो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो T1 आ गया F/3। हमसे T2/T1 पूछा तो ये इसका डबल है, तो आंसर आएगा 2:1। ये आंसर है। सॉरी, ओके। Then question number 27. An object of mass 2 kg moving with constant velocity 10 मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है 2 kg से, ये 10 i कैप मतलब ईस्ट में चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। इस सीन इन ए फ्रेम मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन एक्स एक्सिस। ये एक फ्रेम के अंदर इसको देखा गया, और वो फ्रेम भी, लेट सपोज ये एक फ्रेम पर, ये इस फ्रेम में है, और ये फ्रेम भी खुद एक्स एक्सिस में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलेरेशन से चल रहा है। मींस ये नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम मींस ऐसे फ्रेम जिनमें कुछ एक्सेलेरेशन हो उनको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम, ओके। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सूडो फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इन दिस फ्रेम। अब देखो, जब भी हम किसी एक्सेलेटिंग फ्रेम में हो तो हम पर एक सूडो फोर्स एक्ट करता है। वो सूडो फोर्स के फॉर्मूला जो मैग्नीट्यूड होता है, सूडो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। m is mass of body and a is acceleration of frame। और ये अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, मींस यहाँ आगे माइनस लगा देते हैं हम। ये सूडो फोर्स का फॉर्मूला है। अपोजिट डायरेक्शन मींस फ्रेम का एक्सेलरेशन इधर है तो सूडो फोर्स पीछे लगेगा। जैसे हम किसी एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट में बैठे हैं तो हम पे सूडो फोर्स पीछे लगता है, ठीक है। सो सूडो फोर्स लगेगा, मास कितना है, माइनस में 2 इंटू मास है 2 kg और एक्सेलरेशन है 10, तो -20 न्यूटन। माइनस साइन शोज दैट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। सो इस पर पीछे की तरफ 20 न्यूटन सूडो फोर्स लगेगा, ओके। सो आंसर आएगा -20 i कैप। देन क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 इज ए हेवी पार्टिकल ऑफ मास 1 kg। डायग्राम बना लेते हैं। 60 डिग्री पर है, ये एंगल है 60 डिग्री। इसका मास है 1 kg। is suspended from a massless spring attached to a roof, a horizontal force F। इसका मास 1 kg, इस पर फोर्स लग रहा है F न्यूटन का, is applied to the particle such that in the equilibrium position the string makes an angle 60 degree।
द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स F इक्वल्स, तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स F निकालना है। अब अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट पर इसकी एफवीडी बनाऊं तो ये एंगल कितना है, ये 60 है, तो ये भी 60 होगा, और यहाँ पर इस पर टेंशन लग रही होगी T। तो अगर मैं इस पॉइंट पर इसका एफवीडी बनाऊं तो इस पर नीचे इसका वेट लग रहा है 1 kg का, G10 लेते हैं 10 न्यूटन, इधर फोर्स लग रहा है F, टेंशन का एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, इधर आएगा T cos 60 मतलब T/2, इधर आएगा T sin 60 मतलब √3 T/2। सो T/2 इक्वल टू तो 10 होगा क्योंकि रेस्ट पर है, तो T इज इक्वल टू होगा 20 न्यूटन। देन F इक्वल टू √3/2, √3 T/2, तो F इज इक्वल टू आ जाएगा √3/2 इंटू 20, मीन्स F इज इक्वल टू आ जाएगा 10√3 सॉरी। देन क्वेश्चन नंबर 28, अच्छा 28 तो यही था। देन क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30 पैराग्राफ क्वेश्चन है। एक दो ऑब्जेक्ट गिवन है, 6 kg, स्ट्रिंग भी 4 kg की है, एंड ये ऑब्जेक्ट है 5 kg। टोटल फोर्स, नेट फोर्स इस पर नीचे लग रहा है 300 न्यूटन, एक और नेट फोर्स इस पे इनका वेट लग रहा होगा नीचे की तरफ, वो निकाल लेंगे हम। सो फर्स्ट हमसे पूछा है एक्सेलेरेशन ऑफ द सिस्टम, तो एक्सेलेरेशन होता है नेट फोर्स, नेट फोर्स 300 अपवर्ड लग रहा है, माइनस सब पर वेट भी लग रहा है एक्सटर्नल, सो 6 + 4 10 + 5 15, 15 into G is 150 upon 15, total mass is 15, so 300 minus 150 is 150 by 15 is 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आएगा क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर। एक्सेलेरेशन अपवर्ड होगा क्योंकि नेट फोर्स अपवर्ड है। देन द टेंशन एट द टॉप ऑफ हेवी रोप इज, यहां पर हमें टेंशन निकालना है। सो 6 kg की अगर हम एफवीडी बनाएं 6 kg की, सो इस पर 300 न्यूटन ऊपर फोर्स लग रहा है, इसका एक्सेलेरेशन पूरे सिस्टम का 10 है तो 6 का भी इतना ही होगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पर हमें टेंशन निकालना है, तो यहीं पर टेंशन मान लेते हैं होगी T। ओके, सो अगर इसकी हम एफवीडी बना के नेट फोर्स लिखें तो 300 माइनस T इज इक्वल टू 6 इंटू 10 आएगा, तो T इज इक्वल टू आ जाएगा 240 न्यूटन। एक सेकेंड, सो कहाँ थे, 300 न्यूटन, सो T 60 kg एक नीचे 6 kg का वेट है, 60 न्यूटन नीचे फोर्स भी लग रहा होगा, सो इसको ऐसे लिखेंगे 300 माइनस 60 माइनस T इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, 6 इंटू 10 60, सो T इज इक्वल टू हो जाएगा 300 माइनस 60 इज 240 माइनस 60, सो T इज इक्वल टू आएगा 180। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 30। Then question number 31, एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया है एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट है 20 मीटर, इसको थ्रो किया है 20 मीटर की हाइट से विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकंड एट एंगल 30 डिग्री, तो इसका पाथ इस तरह का होगा, पैराबोला। ओके, देन हमसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट P, दिस इज द पॉइंट P,
हमसे पूछा है वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। तो हमें पता है टॉप मोस्ट पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी होती है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, ये होगा 20 cos 30। वर्टिकल कंपोनेंट तो इसका 0 हो जाता है टॉप मोस्ट पॉइंट पर, तो इसका आंसर आएगा 0। देन टाइम ऑफ फ्लाइट फ्रॉम ए टू एम, मतलब यहाँ से यहाँ तक का, ये ए पॉइंट है, ये एम, मतलब इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लगा। तो हमें पता है टाइम ऑफ फ्लाइट इसके वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो इसकी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ये वाली होगी, 20 sin 30 मीन्स 10 मीटर पर सेकंड। सो अगर हमने इसको 20 मीटर की हाइट से 10 मीटर पर सेकंड इसका वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा है, तो ग्राउंड पर आने में इसको कितना टाइम लगेगा ये निकालना है। सो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की अभी जरूरत नहीं है। सो 10 मीटर तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट अगर हम सेकंड इक्वेशन लगाएं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो जब ये पूरा यहाँ पर आ जाएगा इसके ग्राउंड पर, तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट होगा -20, u ऊपर में प्लस मतलब 10t, g हमेशा डाउनवर्ड होता है मतलब -10, तो ये आ जाएगा -5t स्क्वायर। 5 से डिवाइड करते हैं तो -4 इज इक्वल टू 2t माइनस टी स्क्वायर, सो टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 4 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आई है क्वाड्रेटिक। इसके फैक्टर लेने के लिए हम श्रीधराचार्य रूल यूज कर लेते हैं। सो t इक्वल टू आएगा -b कोफिशिएंट है -2, तो माइनस ऑफ -2 इज +2 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 -4ac, तो 4 इंटू a1, 4 इंटू a1 इंटू c -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 इंटू 4 हो जाएगा 16 अपॉन 2a, 2 इंटू 1। सो ये आंसर आएगा 2 प्लस माइनस √20 मीन्स 4 इंटू 5, 2√5/2। सो इसका प्लस आंसर आएगा 1 प्लस माइनस √5। सो 1 माइनस रूट तो गलत हो जाएगा, तो आंसर होगा इसका 1 प्लस √5। इतना टाइम लगेगा इसको नीचे आने में। दिस इज द आंसर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 32 के बाद नेक्स्ट पैराग्राफ क्वेश्चन नंबर 33 34। सो 33 34 के लिए जो क्वेश्चन गिवन है, एट टाइम द पोजीशन ऑफ ए बॉडी मूविंग सच दैट इट्स पोजीशन वेराइज विद टाइम। डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वर्सेस टाइम का फंक्शन दिया है, s इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 60 स्क्वायर प्लस 90 मीटर। हमसे पूछा है फाइंड द बॉडीज एक्सेलरेशन ईच टाइम द वेलोसिटी इज 0। जब जब वेलोसिटी 0 हुई है तब हमें बॉडी का एक्सेलरेशन बताना है। तो इसको डिफरेंशिएट करो, ds/dt आएगा v, तो ये आएगा 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको इक्वल टू 0 कर दो तो t की दो वैल्यू आएंगी जब ये वेलोसिटी 0 होगी। सो 3 कॉमन ले लेंगे तो t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इक्वल टू 0। फैक्टर लेंगे तो t स्क्वायर माइनस 3t माइनस t प्लस 3 इक्वल टू 0। सो t कॉमन लेंगे तो t माइनस 3 आएगा, -1 कॉमन लेंगे t माइनस 3 आ जाएगा। सो यहाँ से t की दो वैल्यू आई 1 और 3 सेकंड। इन दोनों टाइम पर वेलोसिटी 0 हुआ, तो हमें इन दोनों टाइम पर एक्सेलरेशन बताना है। तो एट t इक्वल टू 1 अगर हम बताएंगे तो इसको डिफरेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन आएगा 3t स्क्वायर इज 60 माइनस 12, 3t स्क्वायर 60 माइनस 12, ये एक्सेलरेशन आए। तो t इक्वल टू 1 पर एक्सेलरेशन होगा -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, t इक्वल टू 3 पर एक्सेलरेशन होगा 6 इंटू 3 18 माइनस 12 प्लस प्लस 6 मीटर पर सेकंड। Okay, so the answer is C. Then question number 34. Find the body's speed each time the acceleration is 0. So acceleration is a is equal to 6t minus 12. Okay, so it is equal to 0 8 60 minus 12 equal to 0 means t 60 is equal to 12,
So t equal to at t equal to 2 second, acceleration is 0. Now we have to calculate the speed. So v is equal to 3 into 2 square matlab 4 minus 12 into 2 plus 9. So 3 ये आएगा 12 minus 20, 12 plus 9 21 minus 24 तो minus 3 मीटर पर सेकंड. हमें स्पीड बतानी तो स्पीड होगा इसका मैग्नीट्यूड. सो आंसर आएगा 3 मीटर पर सेकंड. ओके लिख लीजिए. Then question number 35 and 36. Question number 35 and 36. Then question number 35. That a projectile is thrown with velocity v, making an angle theta with the horizontal. एक प्रोजेक्टाइल है जिसको v की वेलोसिटी से थीटा एंगल पर थ्रो किया है. It just crosses the top of two poles each of height h after 1 second and 3 second. दो पोल हैं, दोनों की हाइट h है. आफ्टर 1 सेकंड एंड यहां से यहां तक का टाइम 1 सेकंड है और यहां से यहां तक का टाइम 3 सेकंड. देन टाइम ऑफ फ्लाइट, देन वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल. अब देखिए यहां से यहां तक का, अगर यहां से यहां तक का टाइम, अगर यहां से यहां तक का टाइम 1 सेकंड है और यहां से यहां तक का 3 सेकंड है. अब जितना h हाइट ऊपर जाने में टाइम लगता है उतना ही h हाइट से नीचे आने में भी टाइम लगता है, तो ये भी 1 सेकंड होगा. यहां से नीचे आने का टाइम 1 सेकंड. सो टोटल टाइम यहां से यहां तक 3 + 1. सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 3 + 1 इज इक्वल टू 4 सेकंड. हमने क्या कंसेप्ट लगाया यहाँ पे, हमें पता है टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होता है. सो h हाइट तक यहां से यहां तक जाने का टाइम लगा 1 सेकंड, ये गिवन, और अगले सेम लेवल पर दोबारा आने का टाइम लगा 3 सेकंड. ओके, सो जितना यहां से यहां तक h हाइट ऊपर जाने का टाइम लगा उतना ही h हाइट नीचे जाने का टाइम लगेगा, तो ये भी 1 सेकंड लगेगा. सो 3 + 1 4 सेकंड. Then last question, question number 36. Maximum height attained by the projectile. अब we have to find out the maximum height of the projectile. अब हमें पता है टाइम ऑफ फ्लाइट होता है t इज इक्वल टू होता है 2u sin theta by g इज इक्वल टू 4. सो u sin theta is equal to u sin theta is equal to 20 meter per second. So maximum height h max is equal to u square sin square theta by 2g. This is the formula. So u sin theta का whole square means 20 into 20 upon 2g means 20. 20 20 cancel. So 20 meter. This is the answer. So इसका option आएगा B, 2g. So this paper discussion is completed. So all the best for all the future papers. Bye.